Welcome, Scorpio. Welcome to my reading. You're the second water sign. I'm doing the water sign series. I've already completed the fire sign series, done with Cancer, and here is your chance now. Water sign, that is the second water sign, Scorpio. So, once again, welcome to my reading. Well, this is a slightly different reading, thoda hatke. I've done this reading in the past. Once again, I am doing this reading. It is about what is hidden inside your heart, or what is hidden inside your relationship that you are not aware of. Could be from your side, Scorpio, could be from your partner's side. So please take it as it resonates with your own love story. And certainly, this is a general reading for all the Scorpios, so certain things might resonate, certain things might not resonate. You can watch it as a sun sign, moon sign, rising or ascendant sign, and Venus sign, since it's a love reading. Okay? Fine. So, क्या छुपा हुआ है आपके रिश्ते में या फिर आपके दिल में जो अब तक आप बयां नहीं कर पाए अपने पार्टनर को, या फिर आपका पार्टनर आप तक पहुंचा नहीं पाया वो मैसेज, दिल ही मन में उस बात को रख रहा है, पल रहा है मन ही मन में वो बात. सो थिंग्स लाइक दैट will be portrayed in this reading. Okay, so Scorpio's reading, let's see what's hidden. It seems, Scorpio, some karmic lessons are going on in your love story. Deja vu, repeated patterns, past life, karmic lessons. Something karmic is going on in your love story, Scorpio. That's the overall theme of the reading. और एक कर्मा का कार्ड आया है. Definitely something karmic is going on. It's a double confirmation. Something to do with family, something to do with parenthood, pregnancy, fertility. हो सकता है, maybe the person is pregnant, your partner is pregnant, Scorpio. And it could be a possibility that someone else is responsible for this pregnancy. Either this could be a possibility, या फिर जो चाइल्ड आ रहा है प्रेगनेंसी के दौरान, जो आने वाला है सदस्य आपके फैमिली में, वो कुछ कार्मिक लेके आ रहा है, उससे आप दोनों का कार्मिकली रिश्ता जुड़ा हुआ है. एंड दैट्स द कॉन्सिक्वेंस यू आर गोइंग टू बियर. कॉज एंड इफेक्ट्स, डेप्थ्स, कर्मा. So it's all related to family dynamics, it's all related to fertility, it's all related to parenthood, pregnancy. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी या फिर कंसीव नहीं कर पा रहे, आप दोनों कंसीव नहीं कर पा रहे, पेरेंटहुड में तकलीफ आ रही है, एंड दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ कर्मा. Even that could be a possibility. कन्फेशन की बात आई है. कुछ अगर कन्फेस करना चाहते हैं, जैसा मैंने कहा पहले एक पॉइंट कहा, बहुत सारे डायनामिक्स हो सकते हैं, एक ही चीज़ का. पहले जैसे मैंने कहा कि समवन एल्स कुड बी द पेरेंट,
प्रेगनेंसी किसी और के साथ, आपके पार्टनर के साथ, शायद आपसे कंसीव नहीं की है आपकी पार्टनर. मे बी समवन एल्स इज़ द फादर ऑफ द चाइल्ड, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग, सपोज. सो कन्फेशन टाइम. It was hidden as of now. Till date it was hidden. So please confess करें अपने पार्टनर से, छुपाइए मत. Unveil it. Come clean with a clear cut message. छुपा के मत रखिए certainly. अगर ऐसा इस तरीके का कुछ है. नहीं तो और एक जो डायनामिक मैंने कहा, दैट पेरेंटहुड में कुछ तकलीफ़ें आ रही है, प्रेगनेंसी में कुछ तकलीफ़ें आ रही है, फैमिली बनाने में कुछ तकलीफ़ें आ रही है, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ कर्मा. बट कर्मा इज़ डेफिनेटली प्लेइंग अ बिग रोल, एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, especially when it comes to family and having a child. Scorpio. And it's all because of karma. Is not necessarily past life का भी obviously influence आएगा, cause and effect आएगा, इस life का भी cause and effect आएगा. जैसी करनी वैसी भरनी. That's the proverb. Let's see the guidance. देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहता है गाइडेंस के तौर पे. प्लीज़ पे हीड टू द गाइडेंस स्कॉर्पियो. बहुत हैवी है आपका रीडिंग, वाकई में बहुत हैवी है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ हिडन इन योर रिलेशनशिप स्कॉर्पियो. प्लीज़ टॉक टू योर पार्टनर. Get to know the things clearly in a decent manner instead of fights and quarrels and thinking of divorce or separation. इतना दूर भी मत सोचिए, लेकिन प्रॉब्लम्स सॉल्व हो ऐसा सल्यूशन ढूंढिए. एक दूसरे के साथ ओपनली बात कीजिए. लेट्स सी गाइडेंस. गाइडेंस कार्ड यूनिवर्स फॉर स्कॉर्पियो. टॉलरेंस. हो सकता है आपको अगर न्यूज़ मिल भी चुका है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ स्कॉर्पियो को न्यूज़ नहीं मिला है. व्हाट इज़ हिडन और व्हाट वाज हिडन और व्हाट इज़ स्टिल हिडन. सो लर्न टॉलरेंस इन लव. स्मूथ ऑल इम्परफेक्शंस. आपने जैसा सोचा वैसा परफेक्टली नहीं गया चीज़. द सिचुएशन went all wrong. Imperfect situation है. तो that's what is universe is asking you to do, to have tolerance, build tolerance. Learn to tolerate in love. हो सकता है आपके पार्टनर जब आपसे कन्फेस करे जो छुपाया है उन्होंने, हो सकता है आप टॉलरेट ना भी कर पाए. इसीलिए मैं बोली कि इतना दूर का मत सोचिए. सेपरेशन, नो कांटेक्ट, डिवोर्स वगैरह वगैरह, फाइट्स, क्वारल्स. शांति से काम निपटाइए. प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. टॉलरेंस बिल्डअप कीजिए. लर्न टॉलरेंस इन लव. स्मूथ ऑल इम्परफेक्शंस. परफेक्ट हमेशा नहीं होता है लाइफ, लेकिन हम लोग को कोशिश करके उसी इम्परफेक्शन को परफेक्ट बनाना पड़ता है. और इसके लिए ज़रूरी है इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करें पहले.
परफेक्शन एक्सपेक्ट करने के बजाय इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करें, तब बहुत प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जो खुद ब खुद सॉल्व हो जाते हैं, अगर आपका नज़रिया बदल जाए तो, सोच विचार बदल जाए तो। ओके स्कॉर्पियो, so this was all about your reading. Hope you got some guidance. Please handle the situation delicately, carefully, and wisely, intelligently. Okay? That is an absolute necessity. Wish you all the very best for your love life. Think wisely before taking some action. Okay? Think wisely. It's extremely important. See you in my next reading. Till then, goodbye.